and their passion for Bollywood, their struggle, their journey, and the extent that they can go to achieve their dreams. And now, to tell us more, I would like to invite on stage. Before that, let me tell you who has directed the movie. We have K.D. Satyam as the director. Uh, Round of applause. Our producer, Dr. Satar Diwan. Hello, everybody. Well, this is a movie which, when I saw, I was a little skeptical as to, what is this Bollywood Diaries all about? And I realized that it's a story of all our aspirations, all our dreams. And what is most fascinating about this film is that it takes it beyond. I don't want to give away the story, but goes to another life. So the kind of, the way the bar has been pushed, the way the envelope has been pushed, it's a fantastic journey that all of us have either gone through mentally or physically and come here now and taken our positions in the industry, and there are many of us who will soon do so. So this is a film about that struggle, that journey, and a certain amount of aspirational things that one hears about but doesn't think that can go to such levels. It's a great journey, and I'm happy to be associated with this film. At Zee Studios, we are in Hindi movies, Marathi movies, also Bengali films. Rahmaji, we made a film called Force, and very soon we will be making other movies in Bengali as well. We're making a Telugu film as well. We want to spread our wings, and we welcome every great talent that is available in this country for every language, and we will support all of you. In Marathi, of course, you know that we just released a film called Nata Samrat to fantastic response. And I promise you that if you have talent, then you may not have to go through this struggle. हेलो एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर वेलकम। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि एक अच्छी स्क्रिप्ट की तलाश में मैं था, और केडी सत्यम ने जब ये स्क्रिप्ट मुझे सुनाई तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये फिल्म बनानी चाहिए, और बहुत अच्छी फिल्म बनी जैसा हमने सोचा था कि ऐसी एक फ़िल्म बनाएंगे, और वैसी बनी है। तो थैंक यू सो मच केडी सत्यम, राइमा जी, करुणा जी, सलीम, विनीत, आशीष जी, थैंक यू सो मच। Good afternoon, everyone. Prakash Nathan from Eagle Eye Entertainment. I welcome you all here in the first place. The moment we heard the script from Satyam, we were kind of very, very sure that we are going to get associated with this film in some manner. And as time passed by, we saw that growing. And we are really proud the way it shaped up. Wonderful performances. We can't say more. Anything. I mean, the movie will talk for itself. I'm very, very sure about that. And I think it's been a fabulous journey so far, and I'm sure that we're going to set the box office ringing. Thank you very much. Thank you so much, and I would request you to please be seated. And I would now like to call on stage Mr. K.D. Satyam, the director of Bollywood Diaries. The starting point would be the core point. Actually, as we all are here to somehow achieve our dream, right? It's a dream city. So some they give up, some they achieve, and some are in that space who are still struggling. Still, it's there. The hope is alive, and they want to achieve it. The journey is on. So this film, the characters here in this film, the journey is on. So would love to invite my cast. Raima, please come. Salim, Karuna, Vineet. Ashish ji is still on the way, huh? He can reach any moment.
fell in love with Imli. I know that's a very cliche answer, but I don't really do that many films, and I think I just had to do Imli. I mean, I just fell in love with her, and I hope I did her as he wanted. Thank you so much, Raima. What about Satyam sir? Do you want to say something about the movie? What should the audience look forward to? I guess it's a very, very honest film, you know, very, very extremely real what is happening in life. We all, as it's not only Bollywood, you know, we all have some aspirations, some dream. It could be different occupation, could be. So somewhat it's that relatable factor is there very much. So I would just say ki the very, very interesting part would be like ki how far can we go? You know, we all have dream, but how far really? I mean, like how far can we push ourselves to achieve our dream? You know, so that could be the interesting element you will see in the film. These characters like Imli, Vishnu, Rohit, so they pushed themselves to achieve their goal. So it's very honest, very real. So no manipulation. Generally, we all do. You know, we manipulate the script. So it's a pure, honest film, and hope they all will love it. Yeah, that's it. That is what. Thank you so much, Satyam sir. We have Salim with us here, and Salim, I want to know how far can you go for your dreams? इसके लिए आप फिल्म देखिए कि हाउ फार आई कैन गो टू गेट टू अचीव दिस ड्रीम. एक्चुअली सत्यम सर ने सबसे पहले मुझे ये रोहित के बारे में बताया, तो मैं समझ नहीं पाया क्या करेगा, क्या कर रहा है लड़का. लाइक एज यू सीन के लाइक थोड़ी सी आपने झलक देखी है, पूरा देखा नहीं है रोहित को आपने. 26 फेब को देखना रोहित. सो मैं समझ नहीं पाया कि मैं कन्विंस नहीं था इस कैरेक्टर से. फिर उन्होंने मुझे 2-3 ऐसे रियल कैरेक्टर से मुझे इंट्रोड्यूस करवाया कि दीज आर द रोहित, और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हम सब में एक रोहित है, और मैं उससे रिलेट करने लगा. एंड देन आई रियली लव दिस कैरेक्टर, एंड आई होप कि मैंने सत्यम सर ने ओके किया टैग को तो अच्छा ही होगा, एज ही इज नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर फ्रॉम इंडिया. 3 or 4 takes only. You can ask him. Thank you so much, Salim. Thank you. Thank you. And Karuna, you're playing the role of the wife of Ashish. So how different was it? As Satyam sir said in the whole shoot, the 15-day schedule I had in the film, so he was keep telling me, "Galat casting ho gayi yaar." Because जैसे ही cut होता है, I'm like a bubbly and chirpy person, and I had to play something very, you know, बिल्कुल घुटी हुई और शांत और थोड़ी सी जैसे wives होती हैं. तो he always said that, and I always remember that line कि गलत casting. It was a great journey. 11-12 days we shot, and it was beautiful journey. Now she's a fantastic character, the actor of course. अभी है नहीं, but he has done a fabulous job in the film. I've been doing TV for years. Abhi I'm doing a Z network ka hi show for Z Zindagi. So television and this was like something different. I enjoyed a lot. Thank you. और सबसे पहले तो इस किरदार के बारे में कुछ बताइए, किस तरह की प्रिपरेशन की है इस किरदार के लिए आपने? अच्छा, मैं स्टोरी अभी रिवील नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी इट्स रिलीजिंग ऑन द 26th of Feb, पर मैं आई एम प्लेइंग इमली, वेरी बबली कैरेक्टर, वेरी टॉकेटिव. शी हैज़ लॉट्स ऑफ ड्रीम्स, lots of everything. She wants to make it to Bollywood. तो मैंने सिर्फ सत्यम सर के साथ I did a lot of reading of the script. He did a lot of homework with me, lot of workshop in 2 days, and I'm a director's actor, so I relied heavily on his research and his homework, and he helped me. राइमा, जैसे कि मैंने पहले कहा कि काफी लंबा समय लगा, हाँ, तो मिर्च के बाद जी that was my last हिंदी रिलीज. तो इतना समय क्यों लगा? मैं अभी बहुत बंगाली फिल्म्स कर रही हूँ, तो मैं बहुत बिजी हूँ बंगाल में, एंड इन बॉलीवुड मैं चूज़ करती हूँ. आई एम डूइंग अनदर हिंदी फिल्म कॉल्ड त्रिदेव विच इज़ ऑल्सो गोइंग टू रिलीज अप्रैल में, तो मैं चूज़ी हूँ बहुत.
how did this script came to you? How did it evolve? मैंने काफ़ी जगह रहा हूँ एक्चुअली, दिल्ली, एमपी, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन एमपी, छत्तीसगढ़, फिर ट्रैवल शिफ्टेड टू दिल्ली, देन साउथ, हैदराबाद, चेन्नई। तो जहाँ जहाँ रहा हूँ मैंने ये बॉलीवुड का इम्पैक्ट देखा है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट बॉलीवुड ना, तो इट्स ऑल अबाउट बॉलीवुड, इट्स ऑल अबाउट मुंबई का स्ट्रगल, बट एक्चुअली बॉलीवुड का इम्पैक्ट बॉम्बे से बाहर बहुत ज़्यादा है। तो ये इम्पैक्ट, ये जो पैशन है बॉलीवुड का ऑल ओवर इंडिया, वो मैंने काफी क्लोजली, आई गेस हम सब ने काफी ऑब्जर्व किया है इसको। ऐसा नहीं है कि आई एम द वन हु हैज विटनेस दिस। सो वी ऑल हैव सीन द मैडनेस ऑफ बॉलीवुड आउट देयर। सो जो लोग यहाँ पहुंच गए हैं उनकी अलग कहानी है, यहाँ पहुंचने के बाद उनका स्ट्रगल अलग है, उनकी लाइफ अलग है। लेकिन कई ऐसे टैलेंटेड पागल लोग अभी भी पहुंच नहीं पाए हैं। तो ये कहानी उन लोगों की है, द पीपल हु कुडंट रीच टू बॉलीवुड एंड हाउ देयर लाइफ इज अफेक्टेड बिकॉज ऑफ बॉलीवुड। सो लाइक गाय रोहित, हिट्स कैरेक्टर इन दिल्ली, कॉल सेंटर बॉय, उसकी लाइफ, सोनागाची, कोलकाता, इमली सोचती है कि प्रोस्टिट्यूट है, कॉल गर्ल है, सोचती है कि अगर सनी लोनी कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। सो ये मिडिल एज मैन विष्णु, कॉलेज टाइम में एक्टर रहा था, वो पैशन अंदर सप्रेस करके रखा। पोस्ट 50 डॉटर्स मैरिज, उसको लगा कि यार नाउ आई एम थ्रू विथ ऑल माई ब्लडी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई कैन गो आउट। सो 50 की एज में वाइफ के साथ कॉन्फ्रंटेशन, वाइफ बोलती है पागल हो गए हो क्या तुम। तो सो हाउ इनकी लाइफ कैसे अफेक्टेड है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बॉलीवुड। सो ट्रैवल कुड बी द रीजन, एज यू सेड, सीन सच कैरेक्टर्स, कुछ पर्सनल भी रहा है वो। तो दिस इज व्हाट योर आंसर थ्रू। या मैम। विनीत, आपसे सवाल है, पूछिए। डार्क और अगली कैरेक्टर्स हमने देखे हैं आपके लास्ट 2-3 फिल्मों में। कौन कौन से? डार्क और अगली फिल्म में भी थे आप। डार्क। अच्छा। तो इस फिल्म में भी ऐसे कुछ एक सरप्राइज कैरेक्टर होगा जो काफ़ी नेगेटिव टाइप का कैरेक्टर होगा उसका, या इस तरह से झलक तो कोई दिखाई नहीं दे रही थी वैसे, लेकिन कुछ ऐसा सरप्राइज हो सकता है फिल्म में? As Raima said कि she is playing इमली which is very bubbly, तो इमली में मैं उसकी चटनी बनाऊंगा जिसे टेस्ट करेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। तो बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर है। जब मुझे सत्यम ने बताया, बिकॉज एज ही सेड कि बहुत सारी कहानियाँ हैं। रोहित की जो कहानी है जो सलीम कर रहे हैं, 14-15 साल पहले मैं एक टैलेंट हंट के थ्रू आया था, तो आज भी 15 साल के बाद कुछ एक लड़के ऐसे हैं जो चले गए, जिनका कुछ हुआ नहीं, लेकिन उनके हेड में दे आर स्टिल देयर। तो ऐसा होता है। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हमारी ज़िंदगी से जब पर्दे पे आती हैं तो खूबसूरत लगती हैं। थैंक्स टू सत्यम कि कुछ बहुत ही अच्छा इन्होंने छुआ है, जिसका हिस्सा बन के मुझे बड़ा मज़ा आया। एंड थैंक्स टू डॉक्टर सत्तार दीवान, थैंक्स टू नितिन जी स्टूडियो एंड द होल टीम कि ये फिल्म बनी है और अच्छी बनी है। और आप लोगों ने ट्रेलर देखा, फिल्म देखिए, मज़ा आएगा। मेरा सवाल आप चारों से है कि ट्रेलर की शुरुआत में हमने जो 3 पर्सनालिटीज़ के बाद मुझे खुद लगा था कि मैं स्टार बन गया। मेरे शहर में लोगों को ये लगा था कि अरे वाह, विनीत की तो निकल पड़ी, डॉक्टरी वॉक्टरी छोड़ के तो गया। लेकिन जब आप रियली यहाँ उतरते हैं मैदान में बल्ला और बैटिंग वैटिंग करके, तो पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ें आपने करी ही नहीं थी। फिर वो
चलता जाता है प्रोसेस, देन यू नेवर नो कि आप कहाँ जा रहे हैं। एक टनल में आप जा रहे होते हैं, रोशनी कब आएगी आपको पता नहीं। तो मेरे साथ ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन वो एज एन एक्टर मुझे बहुत रिच बनाते हैं, थैंक्स टू दोज किस्साज एंड एक्सपीरियंसेस। राइमा जी। I got my first break very easily, Godmother, because Dinesh Shukla knew. I come from a filmy background, so the first break is very easy. But not that it's been a very easy journey after that, because after that, I didn't go. I failed in many screen tests after that. I got rejected from a Telugu film because I didn't know how to ride a bike. And bike, that was a climax sequence. I had to ride the bike, and I couldn't learn it. So yes, ups and downs. But because I come from a filmy background, it's not so hard as it is for other people, I would say. जैसा विनीत ने बोला कि मेरी जर्नी रही है, मैं स्टार हंट शो से आया हूँ। मैंने एक्चुअली आज से 5-6 साल पहले मैंने जेट सेट को पार्टिसिपेट किया और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैं जीत गया वो। उसके लिए मुझे $1000 7 days स्टे इन दुबई विद ऑल स्टार्स, करण जौहर, ऑल इंडस्ट्री देयर। द 7 days आई स्टे देयर। मैंने बोला सलीम तू क्या कर रहा है यहाँ पे, तेरी लाइफ तो ये है, तुझे तो यही करना चाहिए। देन मैंने भाई साहब को बोला और डैडी को सबको बोला कि जस्ट आई वांट टू बिकम एन एक्टर। सो लाइक सबकी जर्नी ऑलमोस्ट ऐसे ही शुरुआत होती है, अप एंड डाउन्स होते हैं। मैं फॉर्चुनेट हूँ, थैंक्स टू अल्लाह, थैंक्स टू माय फैमिली, थैंक्स टू सत्यम सर कि उन्होंने मुझे ऐसा ब्रेक दिया। और मैं यू विल सी माय कैरेक्टर, होप यू विल लाइक। थैंक यू। ओके, आई केम टू बॉम्बे, थिएटर वीटर करके आए थे एंड लाइक डांसिंग वांसिंग सीख कर। तो सबको लगता ही है कि आते हुए फिल्म्स करेंगे। एक फिल्म करी भी राज सिप्पी जी की, लेकिन फिल्म रिलीज़ नहीं हुई, वो बहुत बड़ा सेटबैक था। आई थिंक आई वेटेड फॉर दैट फिल्म फॉर 1.5 year। उसके बाद अरुण ईरानी जी के ऑफिस में एक मीटिंग हुई, वो एक सीरियल बना रही थी वैदेही। तो मैं बड़े चौड़े में, नहीं मैम मैं तो फिल्म की है, मैं तो उसका वेट करूँगी। एंड मैम के चेहरे पे एक स्माइल थी, मे बी दे नो द इंडस्ट्री और वट एवर लाइक सो गोल गोल घूम के द फिल्म डिड नॉट रिलीज एंड वो थोड़ा सेटबैक हो गया। उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग टेलीविजन। करते 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 बीच में राजश्री आई एंटर एंड आई डिड 6 serials विद राजश्री प्रोडक्शन। सूरज जी इज़ एन अमेजिंग पर्सन। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हर स्टेप पे काम देते रहे और बहुत अच्छा रहा सफ़र। तो उनकी फिल्म प्रेम रतन में भी एक छोटा सा सीन उन्होंने मुझे दिया बिकॉज ऑफ द टेलीविजन आई बीन डूइंग विद हिम। और अब ये फिल्म सत्यम सर ने दी है, तो थैंक्स टू हिम, थैंक्स टू एवरीबडी हु इज इन्वॉल्व इन द फिल्म। सो एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। Thank you so much. Thank you. Can we have a round of applause? And any other questions that we have? The ones behind? All right. So now we'll have the photo op, and I will request you to please come on the stage for the photo op.